Okay, good morning to all. In the last lecture, we have started the first come first serve, and we have completed this example. Okay, now take a pen and paper and do the next practice to this. Am I audible? Arman? Yes, sir. Yes, sir, Okay, audible. good. So do the next one. Four processes are given to you, that is P1 to P3, and arrival time is given to you, and bus time is also given to you. You need to find completion time, turnaround time, and waiting time, and then after you need to find average of both, average turnaround time and average waiting time, and then paste your answer into a chat. Most of students' answer is 8.75 and 14.25. Uh, Udit, check your average waiting time. It's 8.25. There is a difference. So you can calculate it again. Okay, it's okay.
Okay, most of you have calculated. Let's cross check your answer. Yes, good, fine. 8.75 and 14.25. So congratulations to all. This is the correct. Similar way we need to uh, keep going. Now next one, be careful. Processes are given to you, arrival time given and bus time given. You need to find CT, TAT and waiting time, and you need to find average also. In this, I will not clear any doubt. You need to do it by yourself. After that, if you after calculating this example, if you have any query, any doubt, then definitely I am here. I will resolve it. But first, you try it by yourself. In this example, it will take time, but be careful. We don't have any. Yes, I got to answer Udit, Pankaj. We are not in hurry. We have a lots of time, and I am going each and every lecture as per our plan. So don't worry about that. Just do your best for answer good. Uh,
That's why I'm telling you, take your time with it. बिकॉज इसी ये एल्गोरिथम इजी है, थोड़े से ट्विस्ट आ गई तो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है। इसके बाद जो एल्गोरिथम्स होंगे वो खुद एल्गोरिथम ही इतना कंफ्यूजिंग रहेगा आपको, तो सो दिमाग शांत रख के ये कैलकुलेट करो, जो एल्गोरिथम का फंडामेंटल है वही रहेगा। अप्लाई आपको कैसे करना है वो आपको आपकी कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, बिकॉज वन ऑफ द waiting time comes in negative. And make sure all of you listen carefully, it will never come in a negative, either waiting time or turnaround time कभी भी negative नहीं आएगा। Negative आ रहा है, it means uh, it's our mistake in a addition, subtraction, or maybe in a chart. That's why I'm telling you, be calm and do it carefully. Yes, Suman, you can try it again. Why not? And meanwhile, if you have those who have done, if you want to share it, then you can share your screen through the camera, and you can show me your chart. I got only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Only 17 answers out of 38 37 students. It means remaining students are doing, and out of 17, approximately 2 to 3 answers are incorrect. So you identify and cross check your answer. एल्गोरिथम इतना इजी है, अब तक आपको ऐसा ही लग रहा था कि 3 एग्जाम्पल कैलकुलेट किए, सर ये तो कुछ नहीं है, 2 मिनट में आंसर मिल जाता है, ठीक है। बट थोड़ा सा ट्विस्ट आया, इट मीन्स you will be in confusion mode, and it will take a time, and you should be careful.
Okay, let's start. Now you need to give me the answer by unmuting your answer because I'm not able to see your chat. So which process comes first? P4. So should I write P4 here? At 0, P4. yes, good. 0 second, P4 comes first, and P4 requires 3 seconds, sorry, 3 second. So 0 and up to 3, P4 will go in. So you can do it one thing, you can cross it. Okay, this is done. Now after P4, which comes first? P3. 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 Okay, good. But P while ये कंसेप्ट समझ लो ताकि आपको नेक्स्ट एल्गोरिथम में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा. 0 to 3 second. It means can I write like this 1 and 2? So at 1, which process comes? P3. P3 and at 2 second P1. P1 and at 3 second no one. So P1 and P3 वो अभी क्यू में खड़ी है, बोथ आर इन अ क्यू, P1 एंड P3. बट अल्गोरिथम सेज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो कौन पहले आएगी? बट ऑब्वियस P3 है. सो P3 का कितना चाहिए? 8. सो P3 और 8 सेकंड, सॉरी 8 + 3 11. 11 ही टाइम 11. 8 + 3 11. Now which process come first? During 11 second, all process comes. But now let me first cross it. Now P1. P2, P1 and P5 तीनों क्यू में खड़ी रहेगी. ठीक है. अब लेकिन पहले कौन आई थी? P1 2 सेकंड में. सो हम टर्न किसका देंगे? P1 को. कितना चाहिए उसको? 6. 11 + 6 17. देन आफ्टर, सो इसको भी कैंसिल कर दो. ये रफ है इसलिए कर रहा हूँ, फाइनल में नहीं करना है, रफ में आप कर सकते हैं. उसके बाद कौन सी आई? P2 और P5? P5. So P5, so P5 is here and you can write 17 plus 14 21 और लास्ट में कौन सी बची? P1 को कितना चाहिए? P2 sir. सॉरी P2, यस इट्स अ P2 को कितना चाहिए? 3. इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं. और P2 को 3 चाहिए. 21 + 3 it means 24. So this is our chart. Based on chart you can write every value. P1 requires 17. P2 required 24. completion time of P1 is 17. P2 का 24 है. P3 का कहाँ है? 11. तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे सीक्वेंस में मत लिख देना. ठीक है. P4 का कितना रहेगा? 3 एंड P5 का 21. अब तो ये सही रहेगी आपका. ठीक है. चलो क्रॉस वेरीफाई योर आंसर. अब मैं चेक करता हूँ आंसर क्या है. 8 और 8 12.8 कितने लोगों का सही है? हाँ. के उदित, पंकज, अरमान, आकांक्षा, भाविन, ध्वनि, पार्थ, सुमंत, जानवी, हेमांगी, उर्वशी, खुशबू, वत्स, जीनाली. आपका आंसर सिर्फ वेटिंग टाइम गलत है. अगर आपका चार्ट अच्छे से ड्रॉ हो गया तो मैंने बोला था कि एक भी वैल्यू इनकरेक्ट नहीं आएगी. ठीक है. नाउ डू दिस वन. अब ये किसके लिए प्रैक्टिस इनफ हो गई अभी आपकी? ये किसके लिए?
कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो, इसलिए अभी 927 पे हुआ। ये एग्जांपल मैंने दिया है, सो विद इन 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स ये सम हो जाना चाहिए, तभी आप पेपर में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। I got two answer and both are different. Okay, few more. Urban, check your answer. It's different from Pankaj, Akanksha and Parth. Within 2 minutes, the students have done good. Sumat, you can also check your answer because you are getting average turnaround time 8.25 and others are getting 13.2. Okay, good. So, अभी भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने में कौन कौन बाकी है? Few students are left.
હા તો ટાઈમ આઉટ થઈ જાય તો એક્સપાયર્ડ બતાવે ને. મને કરી વોટ્સએપ જોઈ લે. Okay, let's check the answer. This is the correct answer, 6.6 and 30.2, and this is the chart. If you want to cross verify, you can cross verify. Next one. Link for Telegram group. Screen is visible, I think. It is visible to everyone. Yes, sir. Now is it visible? Sir, Suman, visible, sir. Suman, check your settings. सर इसमें 80 कैसे लेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा सर. क्या ही भैंस पानी में. रामायण खत्म हो बन गई. रहा है सर, रुक जाइए. रामायण खत्म हो गई और पंकज बोल रहे सीता जी कौन थे अभी सर तक. क्वेश्चन सर अभी समझे. हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा था. लास्ट लेक्चर में नहीं था ना प्रेजेंट तू. थे सर. तो तू खुद से आंसर फाइंड कर. ठीक है सर. मैंने पहले ही वॉर्न कर दिया था सबको कि जब ये नहीं हो तो क्या वैल्यू लेनी है वो. ओके सर, डन. या अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पूछेंगे इसमें क्या करेंगे. उस टाइम पे मैं नहीं रहूंगा. तो आपको याद रखना है कि अगर ये नहीं है तो क्या करना है. अगर दिया है, एक्स्ट्रा है तो रहने दो. नहीं दिया है तो क्या लेना है वो भी आपको पता होना चाहिए. बिकॉज दिस इज द आई थिंक एंड ऑफ दिस फर्स्ट कम फर्स्ट एल्गोरिथम. एक शायद एक ही एग्जांपल बचा है, उसके बाद हम दूसरे एल्गोरिथम पे स्विच होंगे, मूव करेंगे. ठीक है.
पंकज मिला क्या लेना है अराइवल टाइम? नहीं सर। तो तू अब क्या करेगा? प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लो, पता चल जाएगा. Okay, for right now, I am telling that thing, but make sure do not repeat this type of easy mistake. This is not a big thing. Whenever arrival time is not given, you will take which one, Saurabh? Yes, By Arman. default, zero, sir. Yes, zero. By default, you can take the zero arrival time for each and every Yes. process. Good. Yeah. चलो, फिर है इसका आंसर और चार्ट 26.75 and 18.75 is the waiting time. सुमंत, तू हर बार कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करता ही है. देख ले, आधे मार्क्स तो ऐसे ही तेरे चले जाएंगे, बाकी सब के सही है. चलो, I think it's enough practice, so let's move for the next algorithm. कैलकुलेटर तो को ओपन करो या फिर विदाउट कैलकुलेटर करोगे, बाकी सब कैलकुलेटर लेके ही बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे. अगर नहीं बैठे तो अच्छी बात है, बैठे तो भी अच्छी बात है. उससे कुछ कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए. ये सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन ही है. तू फिर से केजी में चला जा. चलो नेक्स्ट एल्गोरिथम इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. Next algorithm is shortest job first. So everyone pay attention on this because it will little bit difficult, not too much difficult, and this one is the important also. Till now we have seen first come first serve, FCFS, only non-primitive flavor, only non-primitive algorithm we have seen. Now in the shortest job first we have both non-preemptive as well as preemptive. So as you are having experience of non-preemptive, so we will go for first non-preemptive SJF, then after we will switch on to preemptive shortest job first. So SJF, that is the short form of shortest job first. So name suggests its meaning, shortest job first. जिसका बस टाइम कम होगा, शॉर्ट होगा, वो पहले आएगी. तो अब तक क्या कर रहे थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आई वो जाएगी. अब क्या बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो पहले शॉर्ट होगी उसका टर्न पहले आएगा. सो दिस इज द डिफरेंट अप्रोच फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग which consider the SJF, that is the shortest job first scheduling algorithm. And in this algorithm we need to find the each and every process burst time. It means it is already given, so we need to find which process has a short burst time. So we can say that length of process, the next CPU burst. सो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट की प्रोसेस मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये फाइंड करना पड़ेगा किसका सीपीयू बर्स्ट टाइम कम है आउट ऑफ दिस 5 or maybe 4 processes. So when the CPU is available, it is assigned to the smallest CPU burst, जिसका होगा उसको असाइन करेंगे प्रोसेस. ठीक है. नाउ मेन क्वेश्चन, मेन पॉइंट इज दिस. If the next CPU burst of 2 processes are the same burst time, if the next CPU burst of 2 processes are the same, then which will come first? For that, this is the tiebreaker, first come first serve algorithm. So FCFS scheduling is used to break the tie. So at that time you need to see the arrival time, AT. You need to find you need to check the arrival time, and
out of all the algorithm, SJF is the optimal. It gives the minimum average waiting time. So average waiting time minimum हुआ तो CPU utilization automatically increase हो जाएगा. But disadvantage of this algorithm is the difficulty is knowing the length of the next CPU request. Next CPU request it means suppose यहाँ पे P1 है, उसका बस टाइम है 5, P2 है, उसका बस टाइम है 10, P3 है, उसका बस टाइम है 9, उसका बस टाइम है 9. ठीक है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट प्रोसेस जो है P4 उसका बस टाइम है कि नहीं है, नेक्स्ट प्रोसेस कितनी है, ठीक है, वो हमें नहीं पता चलेगा. सो दैट इज द डिफिकल्टी. यस, इफ our scheduling is limited up to this, then we can find this one is the shortest, so we will consider it first, and then P3 is the shortest compared to remaining all. But difficulty is knowing the length of next CPU request, वो नहीं पता चलेगा. So that is the disadvantage. Otherwise it is very best algorithm, it is optimal algorithm because it gives the minimum average waiting time compared to other algorithm. Okay. Any query, any doubt? SJF में हम क्या करेंगे वो क्लियर हो गया. जो shortest सर वन टाइम में लेंगे. one time repeat. Okay. Suppose P1 3, P2 1, P3 10, P4 5. So SJF name suggests its meaning. Name suggests its meaning. Shortest job first. जिसका बस टाइम कम होगा वो पहले आएगी. शॉर्टेस्ट जॉब दिखाई है फर्स्ट. तो चारों में से शॉर्टेस्ट कौन है? सो P2, P1 आएगी. तो हम जब हम यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम पहले किसको इंक्लूड करेंगे? P2 को. अभी हम कौन सा एल्गोरिथम देख रहे हैं? नॉन प्रीएम्प्टिव. ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव देख रहे हैं. सो सीपीयू हम इससे बैक नहीं लेंगे, तो इसको कंटिन्यू करने देंगे. ये खत्म हो गई तो इसको ऐसे मैंने क्रॉस कर दिया. अब P1 3, P3 10 और P4 5. अब यहाँ पे देखो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट किसका है? P1 का. 3, 10 और 5 बस टाइम देखना है हमें. पहले बस टाइम देखेंगे तो ये आएगी. तो यहाँ पे P1 देखे, P1 आएगी, फिर इस दोनों में से P4 आएगी, फिर ये आएगी. सो शॉर्टेस्ट जब फर्स्ट हमें बस टाइम पहले देखना है. क्लियर? सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल. सो सिंपल. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने क्या देखा था अभी तक? जो पहले आई वो. अब क्या देखना है? जिसका बस टाइम मिनिमम है सर, जिसका बस टाइम मिनिमम होगा. यस, पंकज इज सेइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है. बट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? बस टाइम में. ठीक है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी. ये एल्गोरिथम तो सिंपल ही है लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी. पहले एल्गोरिथम का कंसेप्ट समझ लो. कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, चलो पहले यहाँ पे ध्यान रखो. सब क्वेश्चन में बीटी दिया ही रहेगा सर? यस, बीटी तो दिया ही होगा ना. यदि बीटी नहीं रहेगा तो फिर सर? कौन पूछा? कौन? पंकज पासवान सर. पंकज ही रहेगा ये. पंकज तू अपना दिमाग लेके बैठा रहे. अब सर बीटी मान लीजिए नहीं दिया रहेगा तब क्या करेंगे सर? तो तू इंजीनियरिंग छोड़ देना. क्यों सर? आंसर कौन देगा? सुमन देगा इसको. पंकज इसका आंसर दे. सर मेरा ही क्वेश्चन, हम ही आंसर दे सर. किससे? कुछ नहीं सर. मीनिंगफुल ही नहीं है तेरा क्वेश्चन. सब क्वेश्चन में बीटी दिया ही होता है. तू पहला जो लेक्चर था ना उसमें मेंटली एब्सेंट था, तू ज्वाइन होके चला गया था.
नहीं सर। ये प्रूव कर रहा है। बाकी सबको पूछ लो, जितने भी अभी स्टूडेंट्स है सबको पूछ लो, सबको मालूम है कि कितनी कितनी चीज दी होगी। रैंडमली पूछना है। चलो मैं पूछ लेता हूं। ध्वनि, एग्जाम्पल में कितनी चीज दी होगी? ध्वनि देखो, यस यस सर। एग्जाम्पल में कितनी चीज दी रही होगी? सर एक तो प्रोसेस और बीटी होगा। और सर एटी तो मतलब कभी दे सकता है कभी नहीं भी दे सकता है। ठीक है। और किसको मैं रैंडम पूछना चाहूंगा? मैं पूछूंगा प्रशांत। प्रशांत आकव्या, यस सर। क्या रहेगा? प्रोसेस और बस टाइम दिया ही होगा एग्जांपल में देख ले, और क्वेश्चन में। देख ले पंकज, ओके सर। मेंटली प्रेजेंट रहे। इसलिए मैं पहले ही लेक्चर में सबको बोल दिया था, वॉर्न कर दिया था। मुझे पता है कि तेरे जैसे स्टूडेंट्स आते ही है। नहीं सर, ऐसा थोड़ी है सर, पिछले क्लास में भी present थे सर। तो तुझे ये पता ही होना चाहिए, क्वेश्चन का सबको आंसर पता है। लेक्चर में। चलो यहाँ पे ध्यान रखो। पहले हमें देखना है हम कौन सा एल्गोरिथम कर रहे हैं, SJF। उसमें सॉरी एफ, उसमें क्या नॉन प्रियम्पटिव। नॉन प्रियम्पटिव का मतलब क्या हुआ कि बीच में से प्रोसेस को हम स्टॉप नहीं करेंगे। सो ये तो आपका नॉन हो गया, प्रोसेस, अराइवल टाइम एंड बस टाइम। अब चार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो पहले बस टाइम किसका कम है, एसजेएफ एल्गोरिथम। अब तक हम क्या देख रहे थे, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम के ऊपर जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो। अब हमें मूव ऑन करना है बस टाइम पे। तो एल्गोरिथम हमारा हो गया एसजेएफ। तो यहाँ पे देखो चार में से मिनिमम कौन है, P3। सो P3 को यहाँ पे मैंने लोड कर दिया, उसका बस टाइम 1 है। सो 0 to 1। सो P3 डन हो गई। तो मैं इसको ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, इसको भी क्रॉस कर दूं, ठीक है। फिर 6, 4 और 5 तीनों में से कौन सा कम है, 4 वाला P2 प्रोसेस। P2 प्रोसेस। सो अभी हम P2 प्रोसेस को यहाँ पे लोड करेंगे। P2 प्रोसेस लोड हो गई। P2 रिक्वायर्ड 4 सेकंड। सो 1 + 4 दैट इज 5, ठीक है। ये नॉन प्रियम्पटिव ही है इसलिए सबको पता चलेगा। अब P1 और P4, 6 और 5 में कौन सा कम है, 5। सो P4 को यहाँ पे हमने लोड किया, ठीक है। 5 + 5 10 और लास्ट में बचा P1। लास्ट में बचा P1 6। तो 10 + 6 16। दिस इज अवर फाइनल। सो अब आपको क्या करना है, इसका पूरा टेबल बनाना है, ठीक है। आप TAT और WT फाइंड करेंगे इक्वेशन से, तो आपको ये मिलेगा 4 और 8, ठीक है। एक काम कीजिए सब लोग, ये एग्जाम्पल की ये जो फिगर्स दिए है वो लिख लो और इसकी प्रैक्टिस करो। जो भी नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल वो नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अभी ये नोट डाउन कर लो। और किसी को कुछ क्वेरी है तो अभी पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस एग्जाम्पल और इन SJF देन यू कैन आस्क मी। चलो एक चीज मैं और भी बता दूं, यहाँ पे अराइवल टाइम कितना है, सबका 0 है। सपोज यहाँ पे अराइवल टाइम मैंने डिफरेंट दे दिया तो हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी अराइवल टाइम 0 पे दे दिया। इस एग्जांपल में किसी को क्वेरी है, एनी डाउट? पंकज तुझे यस सर, नो क्वेरी सर। कंफर्म रिकॉर्डिंग में आ गया है तू अभी? यस सर, पिछले रिकॉर्डिंग में भी है सर। हाँ तो याद रहना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में याद रखना, मैं पहले तुझे ही पूछूंगा। ओके सर, डन। ओके
Good. So in the next lecture, we will continue SJF preemptive, as SJF non-preemptive, as well as we will start the SJF preemptive algorithm. So do practice.